جتنے پیسے دیتے ہیں اور اس کے عوض جتنا کام آپ کہتے ہیں یہ کام کیا کرو، وہ اتنا کام بھی نہیں کرتا جتنے پیسے اس کو ملتے ہیں. اس کو تو فوراً نکال دیجئے، یہ آپ کی کمپنی تباہ کر دے گا، یہ آپ کے اوپر لائبلٹی ہے. اسے کہتے ہیں بزنس میں یہ شخص آپ کے اوپر لائبلٹی ہے، کیونکہ یہ اتنا کام بھی نہیں کر رہا جتنے اس کو آپ پیسے دیتے ہیں. تو یہ تو بوجھ ہے آپ کی کمپنی پر، آپ کے ادارے پر. دوسرے وہ لوگ جو آپ کی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، جو اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنے ان کو پیسے ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں 20,000 مل رہے ہیں تو میں 30,000 کا کام کیوں کروں، بس اتنا ہی کام کریں، باقی 2 گھنٹے گیمیں کھیلتے رہتے ہیں کمپیوٹر پر. کہتے ہیں بس کام ہو گیا، بس اب مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. انہیں آپ کوئی ایکسٹرا کام کہہ دیں، انہیں کوئی اضافی، کہتے ہیں سر نہیں یہ میری جاب ڈسکرپشن میں نہیں ہے، سر یہ والا کام نہیں سر، آپ وہ 20,000 کی بات ہوئی تھی، بس سر یہی کام ہے، یہ تو آپ اضافی کام دے رہے ہیں، تو ایکسٹرا کام دے رہے ہیں. تو تیسری کیٹیگری، جو جتنا ان کو پیسے ملتے ہیں کام وہ اس سے زیادہ کرتے ہیں. یہ آپ کا ایسٹ ہے، یہ لوگ آپ کا اثاثہ ہیں. ان لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھیے. تو 3 طرح کے لوگ ہیں آپ کی کمپنی میں جاب کرتے. پہلے وہ جتنے پیسے ملتے ہیں اتنا بھی کام نہیں کرتے، یہ کسی بھی ادارے میں جاب کرتے ہوں یہ اس ادارے کے لیے نقصان دہ ہیں، یا آپ کے ادارے میں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. دوسرے وہ جتنے پیسے ملتے ہیں اتنا ہی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے چلتے رہیں گے. تیسرا وہ ہے جو جتنا پیسے ملتے ہیں کام اس سے زیادہ کرتے ہیں. جب یہ تیسری کیٹیگری والے لوگ ہوتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے ان کے اوپر، کیونکہ ان کو پیسے اتنے مل رہے ہیں، یہ کام زیادہ کر رہے ہیں. ابھی پیسے تھوڑے ہیں، کام زیادہ کر رہے ہیں. ایک زمانہ آتا ہے ان کے اوپر، کچھ سال گزرتے ہیں تو یہ کام تھوڑا کرتے ہیں اور پیسے ان کو اللہ زیادہ عطا کرتا ہے، ان کی اس برکت کی وجہ سے، وہ جو یہ عادت پر عمل کر رہے تھے. اور جو کہہ رہا تھا مجھے تو اتنے ہی پیسے ملتے ہیں بس اتنا ہی کرنا ہے، جیسے ہی کمپنی میں ڈاؤن سائزنگ آتی ہے کہ 10 لوگ تھے، 10 میں سے 2 کو نکالنا ہے، تو سب سے پہلے کمپنی کس کو نکالے گی؟ اس کو جو اتنا بھی کام نہیں کرتا جتنے پیسے. وہ کہتے ہیں اس کو تو فارغ کرو، اس کو تو سوچنا بھی نہیں، اس کو نکال دو فٹافٹ. اور اس کو وہ دفتر میں آ کے پتا چلتا ہے کہ حضرت فارغ ہو چکے ہیں، جاب سے نکالا جا چکا ہے ان کو، اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. دوسرے وہ پھر ان کی باری آ جاتی ہے جو جتنے پیسے کہتے تھے میں زیادہ کام کیوں کروں، مجھے تو پیسے تھوڑے ملتے ہیں، بس اتنا ہی کام، بس ٹھیک ہے. ان کی بھی باری فارغ. اور سب سے آخر میں وہ جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ بندہ کام کا ہے، اس کو اپنے ساتھ جوڑے رکھو. وہ جب تک کمپنی نہ ختم ہو جائے وہ والے بندے کو اپنے ساتھ رکھتا ہے. کون سا بندہ؟ جو جتنے پیسے ملتے تو اس سے زیادہ دل سے، شوق سے، لگن سے، محبت سے، دل لگی سے کام کرتا ہے. یہ عبد الکلام صاحب بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، مجھے انہوں نے اپنی سٹوری بتائی کہ انہوں نے زندگی میں کیسے شروع کیا تھا، اور آپ سب لوگ بھی ان کو جانتے ہیں. تو انہوں نے وہ زندگی گزاری کہ ان کو جب پیسے تھوڑے ملتے تھے یہ کام اتنا کرتے تھے، تو کچھ سالوں کے بعد آج اللہ نے ان کو اتنا عطا کیا ہے، یہ کام تو اب اتنا نہیں کرتے، کام تو تھوڑا کرتے ہیں. کیونکہ جیسے جیسے آپ بزنس لیڈر میں اوپر جاتے ہیں آپ کا کام کم ہوتا جاتا ہے، آپ کے پیسے بڑھتے جاتے ہیں. لیکن ایک زمانہ تھا جب یہ ہر کام کرتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے، یہ پیسوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے کہ پیسے تھوڑے مل رہے ہیں، یہ دل سے، شوق سے، لگن سے، ڈیڈیکیشن سے کام کرتے تھے. تو گو ایکسٹرا مائل کا مطلب یہ ہے آپ اپنے کریئر میں، اپنے جاب میں، اپنے بزنس میں کیا اضافی چیز کر رہے ہیں. اگر آپ کا کسٹمر ہے، آپ کا کلائنٹ ہے، تو اس کو آپ کوئی چیز ایکسٹرا کریں اس کے لیے، وہ ایکسٹرا اتنی سی کیوں نہ ہو، تھوڑی سی کیوں نہ ہو. وہ یہاں پاکستان میں ایک جوس والا ہے، وہ جوس والا جو تھا وہ جوس کی ریڑی لگاتا تھا 25 سال پہلے، وہ آج کروڑ پتی آدمی ہے. کیوں؟ وہ اس کی ایک عادت تھی، وہ عادت یہ تھی کہ وہ جس شخص کو، کوئی شخص آتا مجھے ملک شیک کا ایک گلاس دے دو، تو وہ اسے ملک شیک جب مشین سے بنا کر دیتا ایک گلاس، تو اس گلاس کے ساتھ ایک چھوٹی سی گلاسی تھی، وہ گلاسی اضافی دیتا، وہ فری میں ساتھ، اس کے اندر بھی ملک شیک ہوتا. یعنی ایک بڑا گلاس اور ایک چھوٹی سی گلاسی. وہ کسٹمر آتا وہاں بڑا خوش ہو جاتا کہ اچھا مجھے تو 60 روپے کا گلاس ملنا تھا، یہ تھوڑا سا اضافی ملک شیک بھی ملا ہے. گاہک بڑھتے گئے، 1 2 4 10 20 50، آج اس کی کئی برانچز ہیں پاکستان میں اور کروڑ پتی آدمی بن گیا ہے وہ. کیوں؟ ایکسٹرا مائل. تو آپ اپنے کسٹمر کے لیے کیا ایکسٹرا کر سکتے ہیں وہ سوچئے، اس پہ فوکس کریں. اور 8واں پوائنٹ ہے کمیونیکیٹ افیکٹولی، گفتگو کا فن.
गुफ्तगू के बगैर, सीखे बगैर दुनिया में कोई आला जिंदगी नहीं है। क्योंकि कभी आप बच्चों से गुफ्तगू कर रहे हैं, आप माँ बाप हैं, बच्चों से गुफ्तगू कर रहे हैं, कभी आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप आपस में अज़दवाजी गुफ्तगू कर रहे हैं, कभी आप माँ बाप से गुफ्तगू कर रहे हैं, कभी आप बहन भाइयों से गुफ्तगू कर रहे हैं, कभी आप दोस्तों से गुफ्तगू कर रहे हैं, कभी आप कारोबार में कस्टमर्स के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप जिंदगी सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, यहां तक कि जब आप खामोश रहते हैं तो भी आप कलाम कर रहे होते हैं, आपका माइंड आपस में बातें कर रहा होता है। तो गुफ्तगू का जो मयार है वो आपकी जिंदगी के मयार के बराबर होता है। अगर गुफ्तगू अच्छी है, मयार भी अच्छा है। अगर गुफ्तगू अखलाक वाली है, जिंदगी भी अखलाक वाली, जिंदगी भी अच्छी है। अगर गुफ्तगू बद अखलाक है तो जिंदगी भी बुरी है। आप हर रोज किसी शख्स से लड़ पड़ेंगे, किसी शख्स से झगड़ा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी गुफ्तगू में वजन नहीं है। गुफ्तगू अगर अच्छी है, कस्टमर, गाहक, क्लाइंट आपके पास आना चाहेंगे। अगर गुफ्तगू बुरी है, क्लाइंट, गाहक आपसे भाग जाएंगे, दौड़ लगा देंगे। अगर गुफ्तगू अच्छी है, आपके साथ लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, आपकी जमात में, आपके काफले में। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। क्यों ये कारवां बना? कारवां इसलिए बना कि ये अखलाक से गुफ्तगू करता था, लोग खींचे चले आ रहे थे, लोग खींचे चले आ रहे थे, लोग खींचे चले आ रहे थे। तो आला गुफ्तगू। अब गुफ्तगू में एक है अल्फाज। जो अल्फाज में और आप इस्तेमाल करते हैं, जो अल्फाज में और आप बोलते हैं, उन अल्फाज का हमारे दिमाग और दिल और हमारी जिंदगी पर बड़ा गहरा असर होता है। मिसाल के तौर पर, एक शख्स से पूछा किसी ने, आपका क्या हाल है, हाउ आर यू? तो उसने जवाब दिया, मैं ठीक हूं, गुजारा हो रहा है, जिंदगी गुजर रही है। एक शख्स से पूछा, हाउ आर यू, क्या हाल है? कहने लगा, अजाब है जिंदगी, बहुत बुरी है जिंदगी, बहुत खराब है जिंदगी, बर्बाद हो गई मेरी, मुल्क ने खराब कर दिया। अच्छा, ये इसके अल्फाज सुने आप। एक और से पूछा, क्या हाल है? कह रहा, जिंदगी एक नफरत से भरी हुई है, लोग बड़े हैं, हर तरफ नफरत करते हैं, मायूसी है जिंदगी, जिंदगी मायूसी का दूसरा नाम है, दिल करता है अपने आप को आग लगा लूं। और वो पूछ रहे क्या हाल है लेकिन इसका जवाब सुने, कह रहा है जिंदगी से इतना तंग हूं, दिल कर रहा है मर जाऊं। अच्छा, ये वो पूछ रहा था, दोस्त क्या हाल है? इसका जवाब सुने, हाल क्या है इसका? बेहाल है, बदहाल है। तो अब सोचिए कि जिन लोगों का ये जवाब है, जब कोई पूछता है हाउ आर यू, वो कहता है नॉट टू बैड, मीन समथिंग बैड। अंग्रेजी में 2TOO का मतलब होता है कि टू बैड का मतलब कुछ ना कुछ बुरा है, ज्यादा बुरा नहीं, थोड़ा बहुत बुरा है। तो किसी से पूछा हाउ आर यू, कहता ओके, मतलब ओके है, बस कोई गुड नहीं है, कोई बेटर नहीं, कोई बेस्ट नहीं, कोई एक्सीलेंट नहीं, बस ओके है। ओके का मतलब ओके बस गुजारा हो रहा है। किसी से पूछा जिंदगी कैसी गुजरी, क्या हाल है, हाउ आर यू? अब दूसरे शख्स का जवाब सुने, वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी बेहतरीन है, जिंदगी जबरदस्त है, जिंदगी शानदार है, जिंदगी बाकमाल है, अल्लाह का एहसान अजीम है, एक्सीलेंट है जिंदगी, जिंदगी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। अच्छा, ये भी एक जवाब है। वो क्या कह रहा था? जिंदगी अजाब है, जिंदगी मायूसी का नाम है, मर गए, डूब गए, खत्म हो गए, टैक्स बढ़ गए, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, लोगों ने ये कर दिया, हालात ऐसे हो गए। और दूसरा शख्स क्या कह रहा है? उससे पूछा क्या हाल है? कह रहा अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी बेहतरीन है, जबरदस्त है, बाकमाल है, शानदार है, एक्सीलेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मार्वलस। उसने कहा क्या हुआ, लॉटरी निकल आई भाई, कोई बड़े खुश लग रहे हो आज। तो इसने कहा हाँ, लॉटरी निकल आई है। यस, तो लॉटरी निकली हुई है आपकी, आप सबकी निकली हुई है, जितने इस वक्त मौजूद हैं। अरबों रुपए से ज्यादा की लॉटरी निकली हुई है। ये आंख देख सकती है, देखें, ये आंख देख सकती है, ये कितनी बड़ी लॉटरी है। आप सुबह उठें, आपको नाचना चाहिए, जैसे जश्न करना चाहिए। और मुझे आसमान नीला नजर आ रहा है, वाह आसमान नीला। सोचें, जो अंधा शख्स है उसको तो आसमान के रंग का भी नहीं पता। वो शख्स, उसे तो अपने बेटे की शक्ल का भी नहीं पता। आप तो अपने बेटे को देख सकते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा दोस्त है।
हाँ, उसको तो रंगों की भी पहचान नहीं है, वो तो अपने बेटे को भी देखने से महरूम है। तो हाँ, मेरी लॉटरी निकली हुई है, क्या हाल है तुम्हारा? बेहतरीन, जबरदस्त, शानदार, बाकमाल। वो कह रहा है लॉटरी निकल आई जी, लॉटरी निकल आई है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे दिल की धड़कन काम कर रही है, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन, जबरदस्त, फर्स्ट क्लास, मैं आज जिंदा हूं। जिंदगी से बड़ी नेमत क्या होगी? हर रोज दुनिया में हजारों लोगों का इंतकाल हो जाता है, मर जाते हैं, वो सोते हैं तो उठते नहीं। तो अगर मैं सुबह उठा तो मैं तो मुसलमान हूं, मेरी तो दुआ ही यहीं से शुरू होती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। यानी मेरी तो दुआ का आगाज, सुबह का आगाज ही यहां अल्हम्दुलिल्लाह से, कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मौत, नींद चूंकि मौत का एक ट्रेलर है, उसके बाद जिंदगी मिली। तो आप सोचिए कि मेरे दिल की धड़कन चल रही है, तो मैं क्यों खुश ना हूं? मेरे चेहरे पे क्यों मुस्कुराहट ना रहे? मेरे हाथ हरकत कर रहे हैं, देखें, कई लोग हैं हाथ नहीं हिला सकते, एक गिलास पानी का नहीं पी सकते, चल नहीं सकते। अल्लाह ने मुझे सोचने के लिए अकल दी, दिमाग दिया। मैं क्यों ना कहूं, कोई पूछे क्या हाल है तुम्हारा, मैं क्यों ना कहूं बेहतरीन, जबरदस्त, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग। ये कम्युनिकेशन जो करते हैं, कुछ अरसे के बाद इनकी जिंदगी भी वैसी ही हो जाती है, इनका कारोबार भी वैसा ही हो जाता है, इनकी नौकरी में भी तरक्की हो जाती है। और कुछ लोग जो कहते हैं मर गए, डूब गए, खत्म हो गए, कहीं के नहीं रहे, जिंदगी अजाब है, बर्बाद है, इनके पास पैसा था, लेकिन ये बोल बोल के, नाशुक्री कर करके, इन्होंने कुछ अरसे के बाद वो पैसा भी चला गया, दौलत भी चली गई, ये वैसे ही हो गए, वाकई लुट गए, वाकई मर गए, डूब गए, खत्म हो गए, क्योंकि इन्होंने वैसे ही अपने आप को बना लिया। तो जो गुफ्तगू है उसमें से एक अल्फाज हैं, जब आप अपने बच्चे को मिलें तो अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया करें अपने बच्चों की तरबियत के बारे में। कुछ लोग अपने बच्चों को कहते हैं निकम्मे हो तुम, बुरे हो, फुलिश हो, बेअकल, और भी तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पब्लिक में इस्तेमाल नहीं कर सकता मैं वो तो बाकी आप अक्लमंद लोग हैं, समझ जाएं। तो वो बच्चों को फिर वैसा ही बना देते हैं। यानी आप हर रोज जब बच्चों को कहेंगे तुम निकम्मे हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तो कुछ साल के बाद आपके बच्चे वैसे ही बन गए। लेकिन अगर आप रोजाना घर आए, रोजाना अपने बच्चे से बात करें, और आप अपने बेटे को या बेटी को कहें चैंपियन, यू आर चैंपियन, यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट, तुम बेहतरीन हो, तुम जबरदस्त हो, यू आर इंटेलिजेंट, और वो वैसे ही बच्चे कहते हैं अच्छा मैं इंटेलिजेंट, मैं वॉरियर, मैं लीडर, मैं चैंपियन। वो कुछ सालों के बाद बच्चों के जिंदगी वैसे ही बन जाती है। तो अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए वक्त थोड़ा है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू एक एक पॉइंट पे कर रहा हूं, मुख्तसरन कर रहा हूं बस। तो अपने अल्फाज का इस्तेमाल बेहतर कर लीजिए। दो तरह के अल्फाज हैं, एक वो अल्फाज जो हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी एनर्जी कम होती है, हमारा जोश कम होता है, हमारे ऊपर मायूसी तारी हो जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं, इन्हें कहते हैं एम्पावरिंग वर्ड्स। ये फेलियर वोकैबुलरी है नाकाम लोगों की। दूसरे वो हैं जो सक्सेस वोकैबुलरी है, वो अल्फाज जो हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, हमारे अंदर हरारत आ जाती है, तवानाई आ जाती है, आगे बढ़ने का जज्बा आता है, आगे बढ़ने की हिम्मत आती है, आगे बढ़ने का वलवला आता है। इन्हें एम्पावरिंग वर्ड्स कहते हैं। तो पहले वाले जो जो एनर्जी कम कर देते हैं वो डिसएम्पावरिंग, और जो हमारे अंदर एनर्जी बढ़ा दें, आगे बढ़ने का आज़म इरादा बढ़ा दें, वो एम्पावरिंग, वो सक्सेस वोकैबुलरी है। तो आज से ऑनवर्ड्स जो आप गुफ्तगू करें वो आपने देखना है, ये गुफ्तगू करके मेरे अंदर आगे बढ़ने का जज्बा, हिम्मत, वलवला पैदा हो रहा है या कम हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। यू हैव टू कीप एन आई ऑन दिस।